Hi everyone and welcome back to my channel. My name is Shreyashi and I'm a software engineer by profession and I like to make videos on skincare, travel, lifestyle and food. So for today's video, I have decided to do something different and today I'm going to do a podcast. For my first ever podcast episode, I'm very excited to have my 80-year-old grandfather with us on the show. My grandfather retired as a Deputy General Manager from Bank of Baroda in Mumbai in 2004. He has been the greatest source of inspiration in our lives, creating opportunities, always supportive of all our decisions. He moved from a village, being born and brought up in a village, moved to the city, worked tirelessly, pursued his education, created opportunities for himself, and even was the first member of our family to go to the United States of America and work as a Deputy General Manager in one of the most respected banks of our country, which is Bank of Baroda, in the year 2000. Despite traveling the world, he's deeply rooted and grounded. He has no airs about him. Even at this age, he's always brimming with energy, so enthusiastic, and has this genuine zest for life. Conversations with him are always a joy. And that is why, for my first ever episode, I couldn't think of a better guest than to have my Nana on board with us, whom we all lovingly call Bade Papa. Welcome on the show, Bade Papa. Thank you. Bade Papa, first question. हम आपको बड़े पापा क्यों बुलाते हैं? Why do we call you Bade Papa? नहीं, आप लोग ये पूजा अंकित पापा बोलते थे और बड़े पापा बोलते हैं। पापा उसके पिताजी को पापा बोलते थे और इसलिए वो मेरे को बड़े पापा चालू कर दिया सबसे पहले पूजा ने, फिर अंकित ने, एंड उसके बाद आप सब लोगों ने। Okay, all right. So, Badappa, you were born before independence, right? Yes, yes. What was your experience like? मतलब आप बहुत छोटे होंगे, of course, ज़्यादा इतना तो आपको idea नहीं होगा what was going on. Yes, I was 4 years old at the time of independence. Do you see any difference? Like, you were too young, but do you see any difference pre and post independence? Like, oh, it's lot of difference. See difference. Okay. When Britishers were ruling India, they were just exploiting the country, and they have no interest in actual development of India, or so there was very scarcity of education, then electricity, everything which was necessary was in short. Basic things, basic facilities were in short, and so on. It was like a illiterate India. But then, after independence, it developed like anything. In place of agriculture, industrialization, in place of telephone, cell phone, in place of manual labor, technology, everything developed like that, just like road development, all round development by 5 years plan and all that took place in the country, and now we are one of few of the most big economies of the world, and it will grow, I think, like that only. And the largest democracy. Yeah. आपके बचपन की favorite memories कुछ अगर आपको याद हो तो? Oh, I have a lot of memories only. मैं एक बहुत रिमोट गांव में पैदा हुआ और उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, स्कूल नहीं थे, एग्रीकल्चर वाज द मेन, एग्रीकल्चर एंड डेयरी वाज द मेन बिजनेस, एंड इट वाज रियली डिफिकल्ट टू डेवलप. 85% or so were agriculturists in the country. So that was the condition at that time. But then the place where I born was beautiful place, surrounded by lakes, mountains, deep forest, and it was really wonderful, you know. तो आप बचपन में lakes में? Yeah, I enjoyed a lot. I used to swim in the wells. Oh, okay. Then ponds. I enjoyed life. Good to know. And it was a great,
experience. Do you miss that experience? Yeah. Still I go there once or twice in a year. Is it still the same? Yes. Okay. So when you were young, मतलब जब आप 20, 25, 30 के थे, and now when you see the world, how has it changed when you were young, adult, and now when you are in your 80s? How the world has changed around you? And you know, when I was about 10 years old, I came to Indore for my studies and staying with my sister. My brother-in-law was a businessman and, not very literate. But then his business management was more efficient than modern professional managers. And he earned a lot of reputation in Indore city, and he was very meticulous. They were having a family of 50 members in one place, and I was with him for 4 or 5 years, unless I done my matriculation on that. So I learned from him. Whatever I am, it is because of his teaching. 2001 में 9/11 अटैक हुआ था, आप न्यूयॉर्क में थे तब. हाँ. कैसा था वो दिन आपके लिए? हाउ मतलब? Oh, it was a shocking experience. I reached the office at about 8:45 morning, and my chief executive was at his residence only. So he telephoned me. First attack on the tower, Yeah. World Trade Center. He told me that perhaps it is an accident and one plane crashed with the World Tower. So he told me only, I'm getting ready and just coming to office. My office was 10 kilometers away, 10 miles away from the residence. Subsequently, next moment, second tower was attacked. Then they realized that It's not it accident. is a terrorist attack. And so they made all arrangements. They stopped transport, everything, because there were tunnels below the river. And if they get damaged, then it was very difficult to do it. The metro system. So only we were in the office till 7:30 p.m. Only after that only the traffic and everything was restored. So then it happened, but then it was a shock for the US authorities. They used to believe that though nobody can attack crossing Atlantic Sea, because about thousands kilometers long. So they were very confident that nobody can do it. वो बोलते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता अटलांटिक को क्रॉस करके अमेरिका पे. ये अटैक में उनका भ्रम तोड़ दिया. That was it. और उसके बाद उनकी सिक्योरिटी और सिस्टम. Oh, then they are very smart, They done everything, whatever they did. मेड श्योर कि आगे से कोई और अटैक. Then they ensured that. Until today, I think they are safe. Was it difficult to stay there? उसके बाद मतलब अभी? No. Normal life was restored once. No, absolutely no problem. Okay. आपके हिसाब से एक strong family bond कैसे बनता है? म्यूचुअल फेथ, मतलब जो आपसी में जो अंडरस्टैंडिंग अपना है, एक दूसरे को समझना, वही रीजन है फैमिली बॉन्ड का. और आपस में विश्वास होना चाहिए. बिना विश्वास के फैमिली बॉन्ड नहीं बनेगा. एक दूसरे पे भरोसा रखो. और दूसरा है वाणी का संयम. अगर आपकी वाणी सही है तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि बाय एंड लार्ज आपको समस्या नहीं आई.
good tongue is always very helpful in life. That I learned. आपके पेरेंट्स ने और आपके दादा दादी ने, आपने जितना भी टाइम उनके साथ स्पेंड किया, उनका इन्फ्लुएंस कैसा रहा आपके ऊपर और अभी तक है तो कैसा है? बहुत बड़ा है। मेरे माता पिता बहुत हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट थे। एग्रीकल्चर बिजनेस था और वहाँ तो एग्रीकल्चर हमारा बिजनेस था। तो वो सुबह 5 बजे से रात को 7-8 बजे तक काम करते थे कंटिन्यूस। खेती और उसके अलावा पशुपालन भी हमारा बिजनेस था। और दोनों करते थे? दोनों करते थे। और हम लोग 7-8 साल के थे तब हमको भी काम पे लगा देते थे। गायों को संभालना करना एक बहुत घटना है उस समय की। मैं 7 साल का हूँगा तो हमारे वहाँ पे कुछ भिक्षा मांगने के ब्राह्मण आते थे। तो एक ब्राह्मण आया था, हम सब 4-5 लड़के बैठे थे। उसने हाथ देखे हमारे, सबके हाथ देखे, मेरा भी हाथ देखा। उस जमाने में वाहन के नाम से घोड़ा था, घोड़ा होता था। मतलब कारें वगैरह थी, सिटी में थी, पर गांवों वगैरह में जो कोई वेल टू डू होता था तो उसके पास घोड़ा होता था। तो उसने मेरा हाथ देखा, उसने कहा इसमें घोड़ा लिखा है। सब लोग हंसे। उन्होंने कहा क्या आप मजाक करते हो? और फिर टाइम में सब बदला कि समथिंग केम ट्रू। वो घटना मेरे को याद आती। घोड़े गाड़ी सब। हाँ। आपके लाइफ में आपकी फैमिली का क्या रोल रहा है अभी तक? फैमिली का रोल तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना फैमिली के सपोर्ट पे कोई बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। और मेरा जहाँ तक सवाल है, मुझे परिवार से बहुत सपोर्ट मिला है और ऑलवेज इनकरेज्ड मी कि बढ़ो, आगे बढ़ो, कुछ भी हो, व्हाट एवर इट इज। ऐसा ही समय आया था जब भी मेरा भी क्या थोड़ा ऐसा रहता था कि जो मेरे मन में आए वो कर लेता हूँ। एक बार ऐसा हुआ जब मैंने फर्स्ट करियर स्टार्ट किया तो गवर्नमेंट जॉब में मैं लगा, रेवेन्यू कमिश्नर ऑफिस में। और वहाँ मैंने 1-2 साल काम किया और फिर मेरे को लगा कि ये काम ठीक नहीं है, छोड़ भी नहीं पा रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था। तो एक दिन मैंने किसी मित्र के साथ इस्तीफा भेज दिया। उसको बोला कि यार मेरी छुट्टी की एप्लीकेशन दे देना, और बिना किसी, बट देन मेरे को ये भरोसा था कि मैं काम छोड़ दूंगा तो कुछ कर पाऊंगा। छोड़ दिया और बच्चे भी थे, 2 नहीं, गुड्डी थी। तो 4-6 महीने तक मैं इधर उधर काम करता रहा, बट देन सेटिस्फैक्टरी जॉब नहीं मिला। फिर भी हिम्मत करना छोड़ दिया। इसमें भी पूरा सपोर्ट था वाइफ का कि देखते रहो, हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अरे क्या कर दिया तुमने, रोना धोना नहीं, बिल्कुल गो हेड। और फॉर्चुनेटली फिर बैंक में जॉब लगी और सब अच्छा हो गया। इसलिए फैमिली के बिना तो आदमी अधूरा रहता है। फुल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट के बिना आप ज्यादा नहीं कर सकते। कोई थोड़ा बहुत करो तो करो, देन इट इज नीडेड। और मैं आई एम लकी कि आई वाज सपोर्टेड बाय द फैमिली, और नॉट ओनली माय वाइफ, माय सिस्टर्स, ब्रदर्स, and everybody was behind me. Whatever achievement is there, credit goes to them. What is एक ऐसा पीस ऑफ एडवाइस जो अभी तक आपके साथ किसी ने दिया हो, और किसने दिया था और अभी तक
वो एडवाइस आपके साथ स्टक है कि हाँ वो उनकी एडवाइस आज भी आप याद करते हैं? वो एडवाइस तो कई लोगों ने दिए हैं और सब लोग देते थे। मेरे ब्रदर इन लॉ भी इंकरेज करते थे मेरे को, सख्त थे वो, तो हमेशा ईमानदारी से काम करो, आगे बढ़ो, वो देते थे। उनको मैंने बहुत फॉलो किया है। मेरे शिवलाल जी दवे जो जिनके मेरे बहनोई जी थे, वो बहुत ही मेरे को इनकरेज किया। उसके बाद उनके ब्रदर थे लालू राम जी दवे, वो भी सपोर्ट करते थे और इस तरह से सपोर्ट तो मेरे को हमेशा मिलता था और उनकी सलाह से ही मैं काम करता था। तो बैंक में आने के बाद भी एक बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे मिस्टर सतीश मास्टर। एक बार मैं एमकॉम में मेरी यूनिवर्सिटी में मेरिट थी, मेरिट में 7वां नंबर था मेरा, तो कुछ ऐसे ही हो गई गड़बड़, तो मैं इस्तीफा देने के लिए मैंने बोला आई विल रिजाइन। उन्होंने बुलाया मेरे को, उन्होंने बोला जोशी आपका बैंक में जो करियर है वो दूसरी जगह नहीं बनेगा। वो सलाह दी कि आप मत छोड़ो बैंक। उसकी सलाह से आज मैं बैंक में रहा और कुछ कर पाया। हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? सक्सेस क्या है आपके लिए? Self satisfaction is the success. If you are satisfied, you are successful. You are not satisfied, whatever you have, you are like that only. So, अगर आप संतुष्ट हैं अपने आप से, तो ये आपकी सफलता है, बस। तो लोगों के क्या पैरामीटर्स हैं या लोग किस से जज करते हैं, उससे कोई लेना नहीं, खुद सेट? मैं आई बिलीव अगर आपको संतोष नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। सब आवे तब जब आवे संतोष धन, सब धन ढूंढ समान। अब मिलियनर्स मल्टी मिलियनर्स, आपके पास संतोष नहीं है, आप रात को सो नहीं पाते हो, तो इज इट सक्सेस? नो। व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद गॉड? भगवान के साथ भगवान में भी पूरी आस्था भाई। और मेरा मानना है कि ईश्वर आपको बहुत मदद करता है, इसमें कोई शक नहीं है। और आपका लक, ये दो चीज़ों में आई एम ए स्ट्रांग बिलीवर। मेरे साथ तो कई किस्से हुए हैं जो शायद मेरे बस के नहीं थे, पर देन इट हैपेंड। क्या हुआ, मेरा न्यूयॉर्क पोस्टिंग, तो बैंक ने शॉर्ट लिस्ट किया ओवरसीज पोस्टिंग के लिए, और न्यूयॉर्क में असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट थी। तो हमको बुलाया, हम इंटरव्यू में गए, सिलेक्ट हो गए, और एक उसके 1.5 महीने बाद ही मेरा प्रमोशन का इंटरव्यू हुआ डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए। तो पहले तो न्यूयॉर्क पोस्टिंग में ही लोगों ने कहा कि ये तो शायद गवर्नर के रिलेटिव है, क्या है, व्हाटएवर ऐसे चलते रूमर। फिर डीजीएम हो गए, तो लोगों को बहुत संतोष हुआ कि अब तो जाएगा नहीं, न्यूयॉर्क में पोस्ट नहीं, डीजीएम का पोस्ट नहीं। इवन जनरल मैनेजर के कैडर के लोग भी मेरे को बोले कि जोशी अब तुम्हारा तो ये गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कहा हो जाएगा तो हो जाएगा, नौकरी तो नहीं जाएगी भाई। इंटरव्यू डीजीएम का जब हुआ तो वो गवर्नमेंट ऑफ एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी दामोदर में मेरा इंटरव्यू ले रहे थे। तो उन्होंने मेरे पूछा कि मिस्टर जोशी, इफ यू आर प्रमोटेड बैंक में रिकंसिडर योर पोस्ट। मेरे को मालूम तो था कि ये तो क्वेश्चन आ गई। तो मैंने बोला सर, पोस्टिंग इज ए मैनेजमेंट प्रोरोगेटिव, आई हैव नथिंग टू से इन दैट, बट देन आई विल ओनली से इफ आई डिजर्व आई शुड गेट प्रमोशन। तो हंस दी मुस्कुरा। तो प्रमोशन हो गया, प्रमोशन तो होना ही था, बिकॉज परफॉर्मेंस के हिसाब से होता है। तो अब ये हो गया कि ये तो नहीं होगा,
ट्रांसफर मतलब पोस्ट ही नहीं है। डीजीएम के पर्स तो बहुत होते हैं, वहाँ पे टैक्सी मिलती है, एजीएम ट्रेन में जाता है। तो बैंक का तो बहुत खर्चा होना था इसमें। बट देन जब फाइल गया चेयरमैन के पास तो उसने बोला सेंड हिम एज ए स्पेशल केस। ये क्या ईश्वर की कृपा नहीं तो क्या, इज इट माई अचीवमेंट? तो गॉड इज ग्रेट, इट हेल्प्स। सो बड़प्पा, आपके 3 बच्चे हैं। हाँ, 2 बेटियां और 1 बेटे। आपके हिसाब से एक फादर रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए? मतलब नॉट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स जो लोगों ने सेट करे, बट आपके हिसाब से एक फादर सन का रिलेशन कैसा होना चाहिए और एक फादर डॉटर का रिलेशन कैसा होना चाहिए? फादर सन से स्टार्ट करते हैं। फादर सन का रिलेशन तो जो है वही है। बस ओनली थिंग इज कि संस्कार जो आपने दिए वो आएंगे। फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ओनली ईगो से आए। इफ यू आर फ्रेंडली तो सब चीजें ठीक ठाक चलेगी। अब मैं जहाँ भी आता है वहाँ दिक्कत होती है नॉर्मली बाय एंड लार्ज, अनलेस यू नो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। बट देन मेरा ये है कि इफ यू आर फ्रेंडली विथ योर चिल्ड्रन, कोई प्रॉब्लम बाय एंड लार्ज आती नहीं है। आप बेटे को भी उतना ही प्यार दो जितना बेटे को दो, और मैं तो कोई डिफरेंस मानता नहीं। दोनों के साथ आप उनको ऐसे लगना चाहिए कि ही इज फेयर, बस। तो फिर बच्चे आपसे विमुख नहीं होंगे, ये मेरा मानना। आप किसको ज्यादा प्यार करते हैं? मैं तो सबको करता हूँ, और सबसे ज्यादा तो कहने की इट गोज विदाउट से। आपने अपनी लाइफ में थ्रू आउट कौन सी हॉबीज या पैशंस परस्यू करें? ऐसा कुछ है जो आप ऐसा कोई मेजर हॉबी तो नहीं है, बट आई लाइक playing games. I used to play now, but then, I'm very fond of cooking. हमने न्यूयॉर्क में कचौरियाँ बना के खिला दी लोग। क्या हुआ, मैं गया एक गुजराती की दुकान थी, तो मैंने कचौरी देखी, तो मैंने कहा भैया गर्म है ये? बोले हाँ। वो ओवन में रख के गर्म करने लगा। मैंने कहा रुक जा भाई। फिर मैं अपने घर पे आया, 2 भुट्टे लाया, मसाला बनाया, भुट्टे की कचौरी बनाई। 1-2 मित्र आ गए थे तो उनको बहुत पसंद आई, साला पब्लिसिटी हो गई। तो बोले साहब कचौरी खिलाओ। तो आई एम वेरी फाउंड ऑफ कुकिंग, यू नो, गुड फूड आई लाइक। वो पप्पू कभी कभी चिढ़ाता रहता है कि आप कड़ी कचौरी वहाँ खा रहे थे, नहीं ये खा रहे थे। सो आई लाइक एंजॉय लाइफ, नो पर्टिकुलर ऐसे हॉबी कुछ नहीं। एंजॉइंग लाइफ आजकल लोग कर नहीं पाते क्योंकि स्ट्रेस इतना लेते हैं। आपको क्या लगता है स्ट्रेस के बारे में? ये तो आपका मेंटल स्टेटस है, आप लेना चाहो तो लो। और जो आदमी पॉजिटिव होगा बाय एंड लार्ज उसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोच। फिर तुलसीदास जी ने कहा है रामायण में, कुमति सुमति सबके उर बस ही, जहाँ सुमति व संपत्ति नाना, जहाँ कुमति व विपत्ति निदाना। आपकी सोच गलत है तो सब चीजें आएगी। इफ यू आर पॉजिटिव, बाय एंड लार्ज यू आर ऑलराइट। एंड हाउ डू यू स्टे पॉजिटिव आपकी इस एज में, पॉजिटिव और एक्टिव? एक्टिव तो ठीक है, एक्सरसाइज करो और अच्छा खाओ पियो। अच्छा खाओ पियो मतलब? कीप फिट, हेल्दी चीजें खाओ। कचौड़ी ये वो तो ठीक है, एवरीथिंग शुड विद इन लिमिटेशन, नॉट दैट कि मैं एवरी डे कचौरी खा रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट। खाता हूँ, शौक है, बट देन
रखता हूँ। और बाकी तो आपको ये देखो, ये मेंटल स्टेटस है, मैंने बोला ना, पॉजिटिव रहना, फिट रहना। आप सोचो मैं बीमार हूँ तो बीमार ही रहोगे, आप सोचो मैं ठीक हूँ तो ठीक ही रहोगे, सिंपल। और आप एक्टिव रहने के लिए अभी क्या करते हैं? मैं सुबह में योगा करता हूँ, वॉक करता हूँ, और क्रिकेट मैच देखता हूँ, पिक्चर देखता हूँ। कितने स्टेप्स करते हो आप रोज? हैं? कितने स्टेप्स वॉकिंग करते हो आप रोज? अरे यार, वो तूने घड़ी दी थी, वो खराब हो गई तो अभी ध्यान में नहीं है। फिर भी ऑन एवरेज? एवरेज तो 7-8 हज़ार तो हो ही जाते हैं। आपको बॉलीवुड पसंद है? मूवीज देखना पसंद है? देखता हूँ ना मैं, तो रोज देखता हूँ। आपके फेवरेट एक्टर कौन है? हैं? फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर तो ऐसे अमिताभ बच्चन ही है। आई लाइक हिम। और एक्ट्रेस? एक्ट्रेस की क्या जरूरत है भाई, तेरी बड़ी मम्मी है ना। ऐसी कोई पर्टिकुलर स्किल है जो आपको लगता है अभी कि काश मैंने ये बचपन में सीखा होता? नो, यू हैव नो रिग्रेट्स? नो, नथिंग। रिग्रेट तो होना ही नहीं लाइफ में। रिग्रेट ही तो प्रॉब्लम का कारण है। आई हैव नो रिग्रेट्स वॉट एवर इट इज। सो यू आर प्राउड ऑफ एवरी? यस, ठीक है। हाँ, जो भी है अपने हैं हाँ, वो डिसीजंस, गुड और कुछ नहीं। अभी एक गांव की गायें भैंसे के साथ रहने वाला आदमी अगर बैंक में डीजी हो गया तो उसके बाद क्या चाहिए उसको? आई हैव नो रिग्रेट्स इन लाइफ, आई एम हैप्पी। आपने बताया था कि आप गांव से शहर आए थे 10 साल की उम्र में पढ़ाई करने के लिए, तो वो पढ़ाई का कीड़ा या उस ज़माने में बेसिकली, अभी तो ठीक है सब फोकस करते हैं एजुकेशन पे, आपके अंदर वो कैसे इंस्टिल हुआ कि नहीं है मुझे पढ़ाई करनी है, एजुकेट होना है? किसी ने बोला या नहीं आपके मन से आया कि आपको ऐसा करना है? नहीं, वो तो अब भाई सिंसियरिटी, हार्ड वर्क, ये तो पेरेंट्स से मिला है। फिर मेरे ब्रदर इन लॉ का वर्किंग देख के भी मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा। और फिर एक वही मैंने बोला ना, एक गॉड गिफ्ट है। नहीं तो हम तो होटल में काम करते हैं इंदौर में आगे। बिरंजो का बिजनेस था बहुत बड़ा, और 50 आदमी की फैमिली थी, तो सब लोगों को बैठे जैसे रखते थे। एवरीबडी वाज वर्किंग, उनके बच्चे सब। तो वी यूज्ड टू वर्क एंड स्टडी। आई गॉट एन एटमॉस्फेयर ऑफ परस्यूइंग स्टडीज। सो हुआ सब अच्छा। कोई मिलते हैं साथ में, मित्र भी मिल जाते हैं। एक बहुत विचित्र घटना हुई। मैं 9th क्लास में पढ़ रहा था, तो हमारे साथ में एक हमारे समाज के ही रहते थे, वो सर्विस भी करते थे। और उन्होंने वो, मैं 9th में था, वो 10th मैट्रिक होती थी उस टाइम, वो परीक्षा दे रहे थे। तो मेरे को बोला यार तुम भी दे दो। तो मैंने कहा मैं तो 9th में पढ़ा हूँ। अरे बोले मैं एफिडेविट बनवा देता हूँ आपका। उसने एफिडेविट बनवा दिया, मैट्रिक का प्राइवेट फार्म भर दिया। मैं इधर मैथ साइंस का स्टूडेंट था, तो प्रैक्टिकल कहाँ करोगे, तो उसने मेरे को कॉमर्स करवा दिया 10th में, और परीक्षा दिलवा दी। उसमें एक टाइपिंग सब्जेक्ट था, तो टाइपिंग भी और मैट्रिक आ गया तो अच्छा फिर हो गया, 57% मार्क्स आ गए। मैट्रिक पास हो गए, बस खत्म। फिर वो स्कूल जाना बंद कर दिया। तो फिर मैं कॉलेज में इंटरमीडिएट में एडमिशन ले लिया था, बेनर्जी से फीस ले गया था। तो एक टीचर रहते थे हमारे, उनके घर के पीछे। तो वो नाश्ता करने आए हुए मेरे बेनर्जी की दुकान पर। तो उन्होंने कहा ये वो बुरालाल ने पढ़ाई छोड़ दी क्या? उनके कान खड़े हो गए। मेरे से फीस लेके क्या बात कर रहे हो? वहाँ तो स्कूल आया ही नहीं है, स्कूल खुला तब से।
तो फिर मेरी क्या हालत होगी, यू कैन अंडरस्टैंड। बुलाया मेरे को, क्या है, कहाँ जाते हो, ये वो सब। फिर वो जिसने मेरे को ये करवाया था उसको बुलवाया, गवाही दिलवाई कि हम मैट्रिक पास कर दिया, ये कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो ऐसी ऐसी घटनाएं होती रही हमारे साथ। सो बड़प्पा, आपको सोशल मीडिया तो पता ही होगा, हाँ है। तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ सोशल मीडिया? सोशल मीडिया क्रिएट्स अवेयरनेस, बट समटाइम गलत भी वो प्रचार करते हैं, वो तकलीफदायक है। तो आपको क्या लगता है कि जो यंगर जनरेशन है अभी, जो काफ़ी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उनको कैसे उसे वाइजली यूज़ करना चाहिए, या क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, मतलब आपके अकॉर्डिंग? वो तो जो भी ठीक नहीं हो उसको अवॉइड करना चाहिए, उसमें क्या है। कैसे आइडेंटिफाई करें कि क्या सही है और क्या नहीं? ये तो वही करना पड़ेगा ना। वो प्रॉब्लम सोशल मीडिया का जो है, या जो भी आपका डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, उसका मिसयूज हो रहा है। आपने सुना होगा साइबर फ्रॉड, कैसे कैसे प्रोफेसर, साइंटिस्ट उनके साथ हो रहे हैं। ये तो गलत है ना भाई। आप कोई भी चीज इंट्रोड्यूस करते हो तो उसका कंट्रोल तो गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। वी आर इंट्रोड्यूसिंग दिस थिंग्स रेकलेसली और लोगों को तकलीफ दे रहे हो, वो बहुत गलत है। गवर्नमेंट शुड कंट्रोल। व्हाट इज योर फॉन्डेस्ट मेमोरी विथ मी? ऐसा कोई इंसिडेंट तेरे साथ तो कितनी है, कौन सी बताऊं? आपकी फेवरेट? नंबर एक टीचर ने दूध पिलाया तो बोला आपके बेटे को मेरी मम्मी ने दूध पिलाया था, इसलिए आपने भी मेरे को दूध पिलाया है। ठीक है। नंबर 2, मेरे को चॉकलेट नहीं लाओगे तो आपकी गाड़ी में नहीं बैठूंगा। तो मैंने बोला भाई गाड़ी रोक, नीचे उतर, गाड़ी रोक, इसको उतार दे भाई नीचे। तो अच्छा ठीक है, मेरे को वो चिप्स दिलवा दे। और एक बार हम जा रहे उधर, रायपुर से दुर्ग जा रहे, खाना कोई नाश्ता वास्ता करने के लिए। तो पहले तो मैं बैठने लगा तो क्या, उठो उठो यहाँ से, मेरी मम्मी कहाँ बैठेगी? अरे भाई मेरी गाड़ी है, मैं बैठ रहा हूँ, तू और तेरी मम्मी को क्या करना। फिर गए वहाँ, तो हम सब लोग चाट की दुकान पे गए खाने के लिए। देखा तो चीना गायब, ओह सॉरी, श्रेयसी गायब हैं, श्रेयसी गायब। अब हम लोग ढूंढो श्रेयसी कहाँ है। देखा तो एक आइसक्रीम वाले की दुकान के सामने खड़ी है और उधर देख रही है। फिर पकड़ के लाए। तो छोड़ दे, कितनी है तेरे साथ तो बहुत सारी है। सब खाने से रिलेटेड ही है ना। एक बार मेरे ऑफिस में ही वो भी है, क्या बोला, कोल्ड ड्रिंक ले आओ। और आपने मना किया था हमें, हैं? आपने हमें मना किया था। हाँ पर तभी तेरे को करना तो कर दिया। अच्छा ठीक है। सो व्हाट आर योर होप्स एंड विशेस? आपकी क्या विशेस हैं फॉर द फ्यूचर ऑफ योर फैमिली, ऑफ यू? Oh, we are a happy family. You know. We are as it is very happy. But we wish that we should have mutual faith and good health. We don't need anything. कुछ जरूरत नहीं है। As it is चलता रहे with God's grace, no issue, no problem. और आपका क्या है मैसेज फ्यूचर जनरेशंस के लिए? एक कोई मैसेज आपकी तरफ से फ्यूचर जनरेशंस के लिए, फ्यूचर के? भाई जो भी आप काम करो मेटिकुलसली करो और पूरा ध्यान उस पर दो, कंटिन्यूसली करो, इट विल ब्रिंग यू रिजल्ट्स। वो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। यू हैव टू बी वेरी मेटिकुलस इन योर जॉब। अपना काम करो, पॉजिटिव रहो, पूरा ध्यान रखो, कंटिन्यूस कोई भी चीज़ हो, इट शुड बी कंटिन्यूस। अप डाउन तो आएंगे, बट देन यू हैव टू बी फार।
वही करना तो सक्सेस होगी, नहीं तो फिर तो आप इधर उधर घूमते रहो। सो बड़प्पा, लास्ट सेगमेंट रैपिड फायर। हाँ बोलो। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, 4-5, आपको जो आपके फर्स्ट माइंड में आता है वो दे बताना। देंगे क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, आपका कोई फेवरेट जोक या आपकी लाइफ से कोई फनी स्टोरी? फनी स्टोरी ऐसा हुआ, एक बार हम पिकनिक में गए पाताल पानी, तो मैंने बोला मेरा कुकिंग का शौक है, तो हमने कुछ खाना वाना बनाया वहाँ पे और भजिए भी बनाए, तो उसका गोल कुछ बच गया था भजिए का, हम खा पी गए। फिर उसके बाद हम मऊ से ट्रेन में बैठते वहाँ से आगे पैदल गए थे। वापसी में जब हम प्लेटफार्म पे आए तो सब लोग बैठे थे वहीं डब्बे में, निकलते यार ये गोल पड़ा है क्या करें, तो जैसे खोमचे वाला बैठता है ना, मैं प्लेटफार्म पे बैठ गया, वो थोड़ा पानी भी था तो एक छतरी लेके खड़ा था और स्टोव लगा के एक थाली रखी डब्बे के ऊपर और वो बच्चे बनाने लगे। अब वो सब लोग बैठे थे, किसी ने देखा, भज्जी अरे कैसे दिए, तो आने के 50 ग्राम। तो बोले दो, मैंने कहा हाँ ले ले गया, अच्छे लगे, खाए, थोड़ी देर से वापस आ गया। तो वो वापस आया जब मैं थाली में से उठा के खा रहा था। बोले ये क्या कर रहे हो, मैंने कहा भज्जे खा रहा हूँ। बोले अरे थाली में से उठा के खा रहे हो आप, मैंने कहा तो क्या हुआ, बोले तो झूठे हो गए। अरे मैंने कहा ये उठाया और खाया तो झूठे कहाँ से हुए, कि थाली झूठी हुई क्या। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं चलता है, मैंने कहा नहीं चलता तो जा। तो फिर वो सब लड़के बैठे थे वो हंसने लग गए, वो समझ गए तो भी ग्रुप होता रहता है। सेकंड क्वेश्चन, आपका गो टू कंफर्ट फूड या फेवरेट फूड क्या है? करी कचौरी। कड़ी आपको कभी भी खिला दो, खा सकते हो आप कड़ी कचौरी। कहाँ की है कोई स्पेसिफिक जगह? स्पेसिफिक तो अजमेर। अजमेर, अजमेर में कहाँ की? बहुत बढ़िया है, वो दुकान थोड़ी याद है ठीक। पर हाँ ऐसा लाइक कचौरी। इफ यू कुड ट्रैवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, हाँ कोई भी कंट्री, हाँ कहाँ जाओ? कोई कंट्री या इंडिया में कहीं, व्हाट इज अ फेवरेट प्लेस? माद। अच्छा, उससे बढ़िया कोई जगह नहीं है, आई टेल यू। नेचुरल ब्यूटी आप देखते रहो, आपका न्यूयॉर्क भी पीछे रह जाए। मैं तो साल में 2 बार जाता हूँ और मेरी तो चॉइस ही हुई है। आपकी फेवरेट प्लेस इंडिया के अलावा, फेवरेट प्लेस क्या है? आप इतनी सारी कंट्रीज गए हैं, हाँ कौन सी फेवरेट प्लेस है आपकी? इंडिया के अलावा हाँ। इंडिया के अलावा इंडिया के अलावा तो अमेरिका ही अच्छा है। बाकी इतना टिप टॉप मेंटेन लंदन भी नहीं है, कनाडा भी नहीं है, फिर दूसरे कंट्रीज मनीला, सिंगापुर, हांगकांग सब दूर घूमे हम, बेंगलुरु हमको सब। देन अमेरिका इज आई थिंक वेल बेस्ट मेंटेन country in the world. Okay. What do you want people to remember most about you? Like a layman. What is your favorite song? Oh. आपको गा के बताना पड़ेगा, गा के बताना पड़ेगा। विकास शांत तो कहाँ में गाता हूँ, है एक आपका, आप हमेशा गाते थे। वो भी है, एक दूसरा भी है। गाना पड़ेगा। अरे यार गाना ही कर। चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना, खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था, तिनका तिनका चुनकर तूने नगरी एक बसाई थी। इतना ही आता है। नाइस, ठीक है। ऑन दैट नोट हम ये पॉडकास्ट एंड करेंगे।
Thank you for coming. Thank you for sharing Thank your you. knowledge. Thank you Thank for you. taking out your time. Thank you. And thank you for being here. Okay, fine. All right, thank you so much. This was it for the podcast. I hope you enjoyed the video. If you did, please like, share, and subscribe. And let me know in the comments below how did you like the podcast. Until then, bye bye.